Good morning, everybody. In today's webinar for improving profitability through dynamic pricing, my name is Parikshit. I head revenue management department at Easy. आज का जो वेबिनार है वो हमने क्लोज होटल ग्रुप के लिए रखा है, जहाँ पे हमने सिर्फ हमारे इजी सेंट्रिक्स वाईसीएस के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बुलाया जा ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सके हमारे इजी मिंट प्रोडक्ट के बारे में, हाउ इट हैज चेंज्ड the life of hoteliers in terms of giving them better profitability, better yield for their room, how it has improved uh, in terms of pricing, how it has improved their timeline, how it is helping them save money. So I'm going to cover all these things in a span of next 30 minutes. Okay, we will discuss on certain case studies. हमने कुछ hotels का data case studies लिया है from गुजरात, राजस्थान, गोवा, Maharashtra, in fact, to show you how they have been using our product for a year और उनको उसका क्या फायदा हुआ है, ठीक है, और हमने उनके लिए क्या चीजें इम्प्लीमेंट करी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे कस्टमर सक्सेस मैनेजर है सुनील सिंह, who looks into implementation and onboarding of EasyMint along with sales. तो वो भी आपके अगर कोई सवाल रहेंगे तो he also would be answering those questions along with me. मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अभी हम। ओके, कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल आप कैसे मैनेज करते हैं। कैन वी हैव पोल अप गोइंग प्लीज। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि या तो आप मैन्युअल प्राइसिंग लगा रहे हो, मतलब आपने एक बार प्राइस सेट कर दिया है साल में 4-5 सीजन के हिसाब से, जैसे आपका शोल्डर हो गया, पीक हो गया, हाई पीक हो गया, लो हो गया। दूसरा है डायनामिक प्राइसिंग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और तीसरा है आपका रेवेन्यू मैनेजमेंट सर्विस, जो आपने अगर किसी थर्ड पार्टी को प्राइसिंग मैनेजमेंट दे रखा है, ओटीए मैनेजमेंट दे रखा है, तो वो पोल आप अगर पुश कर देंगे अपना अपना इसके अंदर आंसर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर पोस्ट कोविड सब रीजन के अंदर जो टूरिज्म का एक वेव आया है। फर्स्ट वी हैड कोविड वेव, देन वी हैव टूरिज्म वेव, राइट। पीपल आर नाउ ट्रैवलिंग मोर ऑफ्टन, पीपल आर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। तो जो प्लेसेस सीजनल थी वहां पे पेरेनियल ग्रोथ आने लगा। मोर पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन लॉन्ग वीकेंड्स, मोर पीपल आर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद इन दैट ज्योग्राफी। और जो चीजें और जो जगहें जहाँ पे सालाना बिजनेस पहले भी हो रहा था, that has now becoming going 2x 3x even 4x in lot of locations, right? Especially in places like Goa, which has always been a tourist hot favorite place. वहां पे I have seen a growth 2x 3x 4x. In Maharashtra, new places are being explored. In Rajasthan, जहाँ पे सीजन का पहले से expand था, now that is expanding. So overall, what I'm understanding or what my analysis says is that more business is coming in, that you also must have experienced as a hotelier कि आपके यहाँ business ज्यादा आ रहा है। Okay, but that is also meaning कि competition भी ज्यादा हो रहा है because new properties are opening up. We are estimating 10,000 new room nights coming up in next 6 months in all these locations. Okay, एंड दैट मीन्स कि अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसको केटर करने के लिए बहुत ज्यादा और प्रॉपर्टीज आ रही है। देर आर हॉस्टल्स, देर आर विलास, देर आर boutique hotels opening up, there are homestays opening up, there are five-star properties coming in. So in all, there is a lot of new inventory getting added in the market, right? And now
today I want to discuss that how you can win in this competition, right? Because now we are not just competing on an online space, you're also competing on offline space, you are competing within your city, within your area, because a first-time traveler who does not know where they want to go specifically, they're going to just put the city name and then they're going to filter from there. A repeat traveler has their own way that I want to go to a particular location X. Let's say I'm sitting in Goa, so I want to go a particular location in Goa, right? I want to go to Baga, I want to go to Kalangut. So I'm going to start my search with Kalangut, and now all 500, 1000 properties across different OTs in Kalangut are in front of me, and I'm going to start filtering. Now, how do we win, right? The question is, how do we win? Now, before we go to winning, there are other things that we would want to explore. Okay. So now pre-COVID revenue management was something that was being practiced, or even 10 years ago, 15 years ago, revenue management is something that used to be practiced in big hotels, right? जहाँ पे एक dedicated revenue manager होता है जो pricing strategy बनाता है, वो sales persons को देता है, sales persons उसको आगे फिर they push it. अब क्या हो रहा है? Revenue management is now entered small hotels also. In fact, it should have entered long time ago. Unfortunately, ऐसा हुआ नहीं. It took a lot of time for us as mid-size hotels, small hotels to adapt to revenue management, right? We've been told revenue management means selling to right person at right price at right time from right channel. This is all something that we already know of, right? What is the right channel? What is the right time? These questions are very important, right? अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि प्राइसिंग हम कैसे करते हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट में जो राइट प्राइस होता है दैट फैक्टर ऑफ प्राइसिंग हाउ डू वी कम टू दैट राइट प्राइस फैक्टर right price factor comes from what is your occupancy, when is that occupancy, in which day of the week, in which month of the year, are we into a high season or a low season, are we looking into any competition or not. All these factors encounter into that right price, right time and right consumer. ओके अब ये क्या हो रहा है कि बड़े होटल्स में एक रेवेन्यू मैनेजर था ये सब डिसाइड करता था आज के दिन में रेवेन्यू मैनेजर्स आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड जो भी है उसका प्राइसिंग भी इतना है एंड रेवेन्यू मैनेजर ऑल्सो बिकॉज देर इज सो मच डेटा it is very difficult for a revenue manager also to manually crunch everything, find out a number, and all those things are adding simply to losing out on that important timeline of opportunity. Okay, तो इन सब का एक बेस निकला कि हम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से प्राइसिंग करेंगे, डे ऑफ वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से भी प्राइसिंग करेंगे. ओके, तो पीपल स्टार्टेड मूविंग from a static price to dynamic price. Okay. रेवेन्यू मैनेजमेंट एज अ सॉफ्टवेयर आपको जो भी प्रोवाइड करता है. ओके, लेट अस आई वांट टू स्पीक मोर ऑन डायनामिक प्राइसिंग. डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? You change your price based on what day you are in, like we spoke, the different parameters of the pricing, and it is very agile. ठीक है, आपका जो प्राइसिंग होता है वो 4 दिन में चेंज होगा, 4 घंटे में चेंज होगा, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चेंज होगा, रूम टाइप के हिसाब से चेंज होगा, कब चेंज होगा. अब ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आप मैन्युअल करने बैठोगे तो आपका दिन ही खत्म हो जाएगा. दैट इज वाई डायनामिक प्राइसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल्सो वी नीड टू हैव द राइट टूल इन प्लेस. क्योंकि आपका डायनामिक प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि होटल एडजस्ट प्राइस ऑफ देयर रूम इन रियल टाइम. ठीक है, अब फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए. रियल टाइम मतलब अगर मेरा गेस्ट आया, मेजर होटल्स में ये होता है कि मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि अब मेरे पास 15 कमरे में से 5 भर गए बिकॉज अ ग्रुप हैज वॉकड इन. आई नो दैट टुडे इज अ थर्सडे, आई हैव पोटेंशियल टू सेल अनदर 8 रूम्स एट अ हायर प्राइस. मैक्सिमम होटल्स में क्या होता है, इमीडिएटली हम क्या करते हैं कि बाय द टाइम, बिकॉज इफ आई एम हैविंग सम स्टाफ, मैं किसी को बोलूंगा भाई ऑनलाइन रेट बढ़ा दो मेरा. अगर स्टाफ नहीं है तो मैं पहले रेट बढ़ाऊंगा, देन आई विल टेल द कस्टमर कि अच्छा आपका आईडी दीजिए, अच्छा आपका चेक इन चेकआउट डिटेल्स दीजिए, आई विल फीड इट इन द सिस्टम. बट फर्स्ट आई विल स्टार्ट केटरिंग टू द नेक्स्ट क्लाइंट दैट माइट बी कमिंग, राइट. इसकी वजह से जो आपका
फ्रंट में गेस्ट खड़ा है, ही इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो रियल टाइम प्राइस करने के लिए आइदर यू नीड मैन पावर हु इज गोइंग टू अपडेट योर प्राइस 24/7, और यू नीड द सॉफ्टवेयर। सॉरी। अब डायनामिक प्राइसिंग का जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि नाउ मार्केट इज ओपन 24/7, राइट? किसी ने रात को 2 बजे बुकिंग बना लिया। आपको अगर लिमिटेड इन्वेंट्री है, किसी के पास 100, 200, 300 रूम्स का इन्वेंट्री है, तो दे विल हैव अ कर्व गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब हमारे पास 15, 20, 25 रूम का इन्वेंट्री है, 40 रूम का इन्वेंट्री है, देन आवर कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वी डू नॉट हैव दैट लेवरेज ऑफ टाइम एंड इन्वेंट्री के। हमारे पास 300 रूम है तो भरते भरते भरेंगे। फॉर अ 10 रूम प्रॉपर्टी, एवरी सिंगल रूम दैट इज सोल्ड, आपका 10% ऑक्यूपेंसी गया। फॉर अ 20 रूम प्रॉपर्टी, एवरी 2 रूम सोल्ड, 10% ऑक्यूपेंसी इज गॉन। तो हमारे लिए हर एक कमरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज वाई डायनामिक प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमको ये भी देखना है कि लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं तो उसका भी हमको प्राइस करना है। हमको ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से प्राइस करना है। हमको ये देखना है कि हाउ वी आर स्टेइंग अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट? इन सब चीज के लिए वी नीड टू ऑटोमेट एंड डायनामिक आवर प्राइसिंग। वी कैन नॉट स्टिक के भाई माय प्राइस फॉर टुडे इज 2500 प्लस जीएसटी, लेट्स से। ओके, ये मेरा एडीआर था पिछले साल का, आई हैव एडेड 10%, नाउ आई वांट टू लुक एट 2500 प्लस जीएसटी एज माय प्राइसिंग। प्रॉब्लम विद दिस is I cannot stick to that price because my neighbor is offering 2200. He sold his baseline. अब अगले जो कैटेगरी है, he is selling at 2700. He is maintaining his ADR. I am not. मैंने 2500 के नीचे नहीं जाना अगर डिसाइड कर लिया तो आई एम ऑन द लूजिंग एंड ओवर हियर, राइट? इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू गेट इनटू डायनामिक प्राइसिंग। वी नीड टू सी रियल टाइम के अंदर हम कितना अजाइल तरीके से प्राइसिंग को अपडेट कर सकते हैं। ओके, कुछ केस स्टडीज है। दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन गोवा। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑपरेट्स फॉर 9 months out of 12, and you can see, I am, unfortunately, I do not have the leverage to show you the revenue figures, but I can show you the growth. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, they have attained 39% overall growth in 1 year after using Easy Mint. Okay, now I cannot again tell you the name of the property, but Sunil was the one who did implementation. He is the pricing manager. He is over here. Okay, he will throw you some light as to what are the strategies that he implemented for this property. Sunil, if you can come online and discuss more on this property, which is based in South Goa, which operates only for 9 months and yet has managed to grow revenue by 40%. What are the strategies that you implemented for them? Well, to property was already established and Mhm. doing a decent occupancy already. So they Okay. have a very less opportunity when it comes to grow the occupancy. Mhm. And also when we did a PQM, that is called price quality matrix, where we take certain measure decisions based on the locations, areas, pricing, quality of the product, rating, reviews, etc. We understood that this property was underselling Okay. in the concept, considering that this is not a that category of hotel. I mean, not a very big chain of hotel due to the Mhm. decent inventory they had, but their product was extremely good. Okay. They have made some changes. We have recommended them to do a small photo session for their Mhm. photography, a professional shoot. They did it. We revamped their entire online presentations with the good photos. The Okay. reviews are already good. And then the pricing, you won't believe Yes. the pricing the property used to sell has grown up by 30 to 40%. Yes. So And I he was want to very, know yeah, that he for was this very. property, Mhm. what are the pricing parameters that you considered from Easy Mint? So it was basically a day of week that we have Okay. chosen. All the Okay. seasonality factors, the Sahara, Diwali, Mm-hmm. Christmas, New Year, those factors even have been considered. I mean, Okay. whatever 30, 40 days where there was a possibility to make more revenue, we Mm-hmm. had added here. And after that, uh, considering that what range they are getting in the last year,
even for the events period, the property Mm-hmm. have shown even 200% growth. Wow. This result is for the holistic overall for the entire year. But Mm-hmm. if I only talk about the special occasion like Christmas, New Year, they have a more than 200% growth, and that is a phenomenal. That has only Okay. come when we understood that the property is decent. They are doing selling the undervalue, but just because the rest of their competition were doing the same thing, and they were in principle कि अगर मेरा competition ये कर रहा है तो मुझे ये करना है. अच्छा. देन वी टेल कि जरूरी नहीं है कि जो आपका कंपटीशन कर रहा है आपको करना है. लुक एट योर Mhm. प्रॉपर्टी और उसको पोजीशन करना है इस तरीके से दैट यू गेट द मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट. Okay, so now it is like this that people are looking at this property and not property is looking at competition. It is turned around, right? लोग करेक्ट. इसको benchmark कर रहे हैं अभी. यस. करेक्ट. Okay, great. Next case study we have is of a property based in Rajasthan. Of I think this is a 30-40 room property. No, this is a little higher. 50 room property where we have gained a growth in terms of occupancy. We have gained 36% growth, and in terms of revenue, we have gained a 35% growth. So, can you shed some light on this property? This is based in Udaipur. तो व्हाट हैज कंसिडरिंग कि इसका जो लीड टाइम है वो 37 डेज है और इसका जो ALOS है दैट इज अराउंड 2.61 डेज. करेक्ट. तो इस प्रॉपर्टी जो है लीजर डेस्टिनेशन है एक तरह से. यस. वेडिंग्स बिजनेस बहुत आते हैं इनके. तो पहले क्या हो रहा था कि दे हैड अ बैड प्रैक्टिस, जिसमें कि प्राइसिंग जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो अननेसेसरी इन्वेंट्री ब्लॉक रहती थी इनकी. ओके. ठीक है. और लास्ट मिनट पे इनका ग्रुप वॉश हो जाता था और ये कभी ग्रो नहीं कर पाते थे. हम्म. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्ट्रीमलाइंड देयर ऑक्यूपेंसी फैक्टर्स. तो अभी मान लीजिए जैसे ही ग्रुप वॉश क्लियर हुआ, हम्म. ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेता. तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी फैक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. ठीक है. इवन फॉर 1% इंक्रीज, क्योंकि इसका एडीआर हाई है, इट हैज अ मेजर इम्पैक्ट इन देयर रेवेन्यू. करेक्ट. एंड सेकंड वाज दैट देयर वाज डोमिनेंस बाय मेक माई ट्रिप. हम्म. ठीक है. तो इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो इधर से आता था और इनका जो है रैशनलाइजेशन नहीं हो पाता था जो डिस्ट्रीब्यूशन इनको चाहिए था. तो उसको हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया. ठीक है. ओके. रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि जैसे बहुत सारे उनके डिस्काउंट चल रहे थे वो हमने स्ट्रीमलाइन करे. और दूसरे चैनल्स उसकी वजह से लाइक Booking.com, एयरबीएनबी, अगोड़ा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट, उधर इंटरनेशनल कस्टमर भी आते हैं, फाइटी जो है उधर, हम्म. उनका फ्लो जो है बढ़ गया. ठीक ओके. है. और जो इनका बेस बिजनेस था जो कि वेडिंग डेस्टिनेशन और जो ग्रुप बिजनेस ये उठाते थे, अब वो प्राइस स्ट्रीमलाइन होने की वजह से इनके जो क्वेरीज पहले अटके हुए थे प्राइस हम्म. की वजह से, वो क्लियर होना चालू हो गए. मतलब वो कन्वर्ट होना चालू हो गए. तो इसका रिजल्ट है कि ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गया. पिकअप अगर आप देखो तो पिकअप भी इनका इंप्रूव हुआ है. और एडीआर इन्होंने डिसेंट मेंटेन करके रखा हुआ है. करेक्ट. करेक्ट. तो प्राइस हमने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है. बस जो ब्लॉकेज थे ये डायनेमिक हम्म. प्राइसिंग की वजह से हमने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया कि वो कहीं पे ओके. इनका रेवेन्यू लॉस ना हो. और उसको समझते हुए हमने इस ये जो है इम्प्लीमेंट करा इस प्रॉपर्टी के लिए. और हम्म. रियली सक्सेस हुआ इस प्रॉपर्टी के लिए. Okay. For our people who have joined the webinar, जब भी आप मिंट से प्राइसिंग करते हो तो डज इट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन? क्या वो OTS के डिस्काउंट को भी इम्पेक्ट करता है या सिर्फ चैनल मैनेजर तक ही सीमित है? नहीं, अभी जैसे मान लीजिए मिंट जो रेट भेजता है, हाँ. बेसिकली चैनल मैनेजर उसको बेस रेट आगे पुश करता है अक्रॉस ऑल द ओके. कनेक्टेड चैनल. ओके. मान लीजिए कि आपका 10% का डिस्काउंट किसी ओटीए पे लगा है. हम्म. बेस प्राइस जो यहाँ से जाएगा 10% उसके ऊपर टॉपअप लगेगा. लेकिन अगर आप उस प्रमोशन को यहाँ से मैनेज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैनेजर में फीचर है प्रमोशन टैब का. हम्म. इसमें आप मेजर ओटीएस जो हैं आपका प्रमोशन यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके. उसमें तो मतलब दिखाएगा मैं कि यहाँ से अगर 5,000 पुश करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, बिकॉज ये प्रॉपर्टी का ADR भी 5.9 है, तो लेट अस हाँ. कंसिडर कि आई एम पुशिंग अ प्राइस ऑफ 5,000 या 6,000, तो हम्म. OTA के ऊपर 6,000 पुश होगा और जो डिस्काउंट है वो OTA के एंड से जाएगा. आपका करेक्ट. जो डिस्काउंट है उसका और मिंट का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है.
करेक्ट? नहीं, ये हमेशा बेस्ट अवेलेबल रेट ऑफर करता है। ओके, तो आइडिया ये है कि आप इवन हमेशा आपका बेस्ट रेट सेल करो। okay, so when we are doing pricing, we have to consider what is the discount we are offering to the OTS, correct? यस, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर सही बात आप एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आप है। बाइफरकेट करते हो, एक ही प्राइस आप हर जगह नहीं बेच सकते। करेक्ट। हर सेगमेंट अलग है, हर सोर्स अलग है, हर सोर्स की अपनी स्ट्रेंथ है। किसी का है कि भाई मेरे को डिस्काउंट करके ही बेचना है, किसी का है कि आप आइडियल प्राइसिंग करो, किसी का है रेट पैरिटी मेंटेन करो, किसी का है हम्म। कि आपका रिव्यू अच्छा रहेगा, जैसे एयरबीएनबी है फॉर एन एग्जांपल। जितना हायर रेटिंग उतना ज्यादा कन्वर्जन का चांसेस, मतलब हर किसी करेक्ट। की अपनी अपनी पैरामीटर्स उन्होंने अपने सेट करे हुए हैं। तो ये टूल आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है और एक रैशनलाइज प्राइस भेजता है अक्रॉस द चैनल। जो भी आपने पहले स्ट्रेटेजी बनाई है वो स्ट्रेटेजी के इन लाइन में ही ये प्राइसिंग आपको भेजेगा। प्रमोशंस तो हमेशा ऑप्शनल है, वो तो अपने कंट्रोल में है कि मुझे लगाना है या नहीं लगाना है। अगर हम नहीं भी लगाते, फर्ज करिए हम नहीं भी लगाते हैं, तो ये सिस्टम सेल्फ सस्टेन है कि बिना प्रमोशंस के भी आपकी बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आएगा कंटिन्यू अगर आपका राइट प्राइस है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है ऑनलाइन देख रहा है, तो क्या हम्म। दिखता है, तो उसको कितना पैसा जेब से भरना है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 40% डिस्काउंट दे रहे हो। 20% का डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं क्योंकि भाई मुझे अपना ओटीए रैंकिंग मेंटेन करना है। करेक्ट। और अगर मैं नहीं करता हूं तो भी मेरा बिजनेस आएगा, क्योंकि उसका कन्वर्जन पे मेरा इम्पैक्ट नहीं होगा। और हम्म। सबसे मेजर जो ओटीए का प्लेटफॉर्म है या किसी कहीं का भी, कि द हायर द कन्वर्जन द बेटर द रैंकिंग, सिंपल इज दैट। ओके। तो अगर आपका कन्वर्जन अच्छा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो या 20% डिस्काउंट दे रहे हो। अल्टीमेटली ओके। कस्टमर जो पे कर रहा है और जो एडीआर पे आप सेल कर रहे हो उसी रेंज पे आपका प्रॉपर्टी सेल होगा। तो उसमें ठीक है। प्रमोशन का भी जरूरत नहीं है, मिंट सेल्फ सस्टेन है मैनेज करने के लिए। ओके। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, ये महाराष्ट्र का है। ओके, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी 17% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। बहुत कम पहले बहुत कम ऑक्यूपेंसी था इन अ ईयर। ओके। उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो रेवेन्यू हैज इंक्रीज 25% और एडीआर इज इंक्रीज बाय 9.45%। तो और अगर आप रेवपार देखोगे तो रेवपार 1300 रुपया ही है। ओके, बड़ा प्रॉपर्टी है ये अगेन। तो इसके अंदर क्या चीजें, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू कंसिडर्ड व्हेन यू आर डूइंग प्राइसिंग फॉर दिस प्रॉपर्टी? अगेन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्यूपेंसी, ये कंटिन्यूअसली अगर आप इस प्रॉपर्टी का पिछले 2 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे हम्म। तो मोरलेस इसके पास में 20% 30% का ही ऑक्यूपेंसी होता है ओके। ओवरऑल। यानी कि डिमांड तो काफी स्टेडी है। अब बात आती है कि क्या ये प्रॉपर्टी यील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यील्ड हम्म। ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है इसके लिए। क्योंकि ओके। अगर पहले 100 कमरे आते थे, आज भी 100 कमरे आ रहे हैं। हम्म। पहले इन्होंने क्या करा, 5,500 पे उठाते थे ऑन एन एवरेज। ठीक है, हम्म। अब ये 6,000 पे, वही बिजनेस 6,000 पे उठा रहा है। यानी कि इन्होंने अपने रेट को 500 रुपए से पुश किया। वो कैसे हुआ है? मिंट में ऑक्यूपेंसी का फैक्टर है, डे ओ वीक का ओके। फैक्टर है, लीड टाइम का फैक्टर है। आप देखो लीड टाइम भी यहाँ बढ़ा हुआ है। ठीक है। ओके। पिकअप तो भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे जैसा आएगा अगर रेट आपका अप्रोप्रिएट रहेगा तो जाएगा ही। लीड टाइम रूल से फायदा ये हुआ कि जो फार आउट जो कस्टमर बुक करते थे हम्म। उसका फ्लो बढ़ गया, जिसकी वजह से पिकअप इंक्रीज हो गया। अब ओके। क्लोजर जब ये इनका विद इन द टाइम जो 15 दिन का है, 15 दिन हम्म। का रेट अब ग्रो कर रहा है। जो भी डिस्काउंट इन्होंने पहले दिया हुआ था, अब ओके। 15 दिन के विंडो में अगर कोई बाई आउट करता है तो इनका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसका फायदा क्या हुआ है कि इनको 500 का एडीआर का भी फायदा हुआ। हम्म। उतना ही ऑक्यूपेंसी है, डिमांड उतना ही है, लिमिटेड डिमांड मैं इसको बोलता हूँ कि लिमिटेड डिमांड में भी आप कैसे अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ये करके दिखाया एक राइट स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ मिंट, जहाँ पे मेरी प्राइसिंग ऑटोमेटिक जाती है। मुझे कुछ भी हम्म। नहीं करना है, मैं कुछ नहीं होने के बावजूद भी मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हूँ। ओके, तो प्राइस हमने 10% से बढ़ाया, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे जो रेवेन्यू है उसको 25% जम मिला। करेक्ट, क्योंकि वो ओके। अपना पिकअप भी बढ़ रहा है ना, फार हम्म। आउट, लीड टाइम करेक्ट। इंप्रूव किया है उसकी वजह से। तो आई विल हैव टू फोकस ऑक्यूपेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे लिए नहीं रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, हाँ, कि वो उतना ही हर है। प्रॉपर्टी के लिए वेरिएबल्स है। हम्म। जैसे हमने केस स्टडी डिस्कस करा, एक प्रॉपर्टी जो प्योरली क्वालिटी पे था, पीक्यूएम बेसिस पे, प्राइस के ऊपर में हमने उसको डिराइव करा। दूसरा था जो ओके। उसी फैक्टर पे था,
वो काफी इंपॉर्टेंट था उसके लिए। फिर उनके सोर्सेज ब्लॉकेज थे, डिस्काउंट अननेसेसरी थी, उसको हमने सॉर्ट करा। अब इस प्रॉपर्टी के लिए डिमांड भी लिमिटेड है, उतना ही ओके। बिजनेस आ रहा है, पहले साल जितना आ रहा है दूसरे दूसरे साल भी उतना ही आ रहा है। तब उसी लिमिटेड डिमांड को हम कैसे मैक्सिमाइज करें या कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसको हमने यहाँ पे मिंट के द्वारा सॉर्ट करा है। ओके, ठीक है। थैंक यू सुनील। थैंक्स। Okay. Again, coming back to our participants. So this is how EasyMint looks like whenever you log into channel manager. Rise में जब भी आप जाते हो, if you have subscribed to EasyMint, एक टैब आएगा of revenue management or dynamic pricing preview. Once you go live, this is what EasyMint dashboard looks to you like. It gives you information on day-to-day basis कि आपका आज का occupancy क्या है, आज पिकअप क्या हुआ फॉर टुडे एंड फॉर फ्यूचर डेट्स, कोई कैंसिलेशंस हुए हैं क्या आज के दिन में, आपका लेंथ ऑफ स्टे क्या है, आपका लीड टाइम, एडीआर, रेवेन्यू, रेवपैक, रेवपार। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आप यहीं से उसको ट्रैक कर सकते हो। एंड यू कैन क्रिएट द फिल्टर व्यू एंड वॉच के आपका ये ऑन मंथ क्या है, एमटीडी क्या है। अगर आपको एमटीडी देखना है, यू वांट टू कंपेयर लास्ट 12 years, तो यस। एंड इफ यू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर easy centrics or easy absolute for over a year, then we can even compare HTLY data which is available over here. Dashboard also gives you information of the source breakup कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सा सोर्स के थ्रू आया। आपका पिकअप विंडो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, जो आपके 40 पिकअप्स हुए वो कहाँ गए। तो इन दिस प्रॉपर्टीज केस एवरीथिंग इज ऑन द सेम डे, जो भी पिकअप आए सारे सेम डे में आए। तो ऐसा सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा जो है, आपको पता चलेगा कि आपका फार आउट बिजनेस कितना आ रहा है। तीसरा आपको पता चलेगा कि ऑन द बुक्स बिजनेस क्या है, राइट। कि ऑन मंथ अगर आपको कंपैरिजन देखना है, आई डू नॉट हैव द लाइव स्क्रीन राइट नाउ, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है, मार्च में क्या है। एंड व्हेन यू गो टू योर particular property, you will also be able to hover over and see source comparison for that particular month. Now, why it is important is that if you have a very high reliance on a particular travel agent, online or offline, any source, any segment, उसी से आपका सारा बिजनेस चल रहा है, तो देर इज अ चांस कि कोई दूसरा कहीं पे डिमिनिश हो रहा है। यू कैन ऑलवेज रीच आउट, राइट। if you are seeing that market is giving a good growth but a particular OTA or a particular travel agent is not, you can always dial the phone and ask them, boss, where is the business? Because I am getting business from an XYZ OTA, you are not providing, right? That all information you can get right from here. आपको उसके लिए और 4 जगह जाने का जरूरत नहीं है। दूसरा है पिकअप रिपोर्ट। नाउ विद इन इजी मिंट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द पिकअप रिपोर्ट। पिकअप रिपोर्ट क्या करता है? इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन एज टू बिटवीन यस्टरडे टू टुडे व्हाट चेंज्ड फॉर यू। ओके, कितना बिजनेस आया फ्यूचर डेट्स के लिए और कौन से दिन के लिए आया। नाउ दिस रिपोर्ट कम्स टू यू वाया ईमेल एंड वाया व्हाट्सएप, यू सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप। एंड ये सवेरे 9-10 बजे जैसे ही आपका नाइट ऑडिट होगा, ये रिपोर्ट आपको आ जाएगा ऑन योर ईमेल एंड योर व्हाट्सएप, giving you accurate information to take desirable। तीसरा है कंपटीशन रेट ट्रैकर। नाउ कंपटीशन रेट ट्रैकर क्या करता है? कंपटीशन रेट ट्रैकर आपको ये हेल्प करता है जानने के लिए कि आपका मार्केट में क्या चल रहा है अगेंस्ट योर कंपटीशन। इफ यू आर सेलिंग लेट्स से एट अ प्राइस ऑफ 4800, आपका कॉम्पसेट क्या प्राइस में बेच रहा है, व्हाट इज द मीडियन प्राइस, एनी फोर कॉम्पिटिटर्स and any four OTAs you can track on a daily basis with the help of competition rate tracker. It is right now only for viewing purpose, तो आप देख सकते हो कि मार्केट क्या प्राइसिंग कर रहा है। not necessarily कि you want to follow, you just want to keep a watch on the market, then this is important for you. Next important thing in the system is your budget, क्योंकि सबसे जरूरी ये हो जाता है कि what you were doing last year, any hotelier, if you are working in the business for a year or two, you would always have planned that last year I did a CR, this year I want to do 1.5 CR. Let's say you are now looking at a 50% more than last year to achieve, right? Realistically, a lot of people will look into achieving 10% to meet inflation demand, right? तो एंड एक प्रैक्टिस रहता है कि वी आर स्टिल यूजिंग एक्सेल टू डू दिस, तो व्हाट वी थॉट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक्सेल, वी मूव दैट एंटायर स्क्रीन इन द सिस्टम
इफ यू आर अगेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, पिछले साल का डेटा से हम 10% ऐड कर रहे हैं, and we are showing what is the estimated revenue or what is the target that you should have, and you can always customize the target looking at different factors in the market. What is that you are actually achieving real time में, और उसका difference क्या है if you are ahead or behind your target, and how much money you are losing out to revenue or due to cancellation, right? आपका cancellation revenue loss क्या आ रहा है वो भी आपको पता चलेगा. तो another important feature of Easy Mint is that you come to know what is the pilferage, right? क्योंकि बिजनेस तो आ रहा है, बट वी ऑल्सो हैव टू प्रिवेंट द लीकेज, राइट? if we are increasing the business, people are paying the money and then they're canceling out, that means there is somewhere lack in the strategy, right? Dynamic pricing is, अभी जो आपको 3 केस स्टडीज दिखाए, तीनों केस स्टडीज में इंप्रूव हुआ बिजनेस, right? But we also have to control the cancellations in order to retain that business. Now from 1 lakh I have gone to 1.5 lakh, but I'm again losing out on 10% on cancellation. Makes no sense. तो इजी मिनट से आपको ये भी पता चलेगा इफ यू लुक एट माय डेली रेवेन्यू रिपोर्ट कि एक तो व्हाट इज दैट यू नीड टू अचीव. वी हैव ऑलरेडी सेट द बजट. नाउ हाउ मेनी रूम नाइट्स यू नीड टू डू बेस्ड ऑन योर करंट एडीआर टू अचीव द टारगेट दैट यू हैव. And if you do not want to follow the room nights target, then you can always follow the ADR, that you have to sell every room you sell at X and Y price. अगर आप दिन के 5 कमरे बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, then sell all 5 at this price of 1700 and above to be able to achieve that number. अभी आपको मैन्युअली भी नहीं करना है, आपका टीम करेगा, उसका भी जरूरत नहीं है, मिंट करेगा. आपका जो वॉक इन आता है उसको भी आप यही प्राइस ऑफर कर सकते हो बेस्ड ऑन, क्योंकि you can have that thinking in the mind, right? कि मुझे 1700 रुपए का प्राइसिंग चाहिए. Now you have to also consider that you are going to give away 20% or 22% commission and around 15-20% of a discount अगर आपने लगाया है तो you can always tell your team that you can keep the price a little lower for your walk-ins compared to online to retain them. तो एक ब्रांड लॉयल्टी भी आपका बनेगा. वीकली रेवेन्यू रिपोर्ट में जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो सी वेर इज द पिल्फरेज हैपनिंग. So there's a company called ACB in this property, okay, which has given them room nights, but all that business got cancelled and they had to incur a loss of 3 lakh rupees. तो यहां से आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि मुझे इस कंपनी के लिए या तो स्ट्रिक्ट कैंसलेशन पॉलिसीज बनानी पड़ेगी या फिर मुझे इनका एलोकेशन कम करना पड़ेगा, राइट? Because system is going to automate the pricing. You can bring them in the purview of dynamic pricing also, and along with that have a strict cancellation policy so you are not at a loss. Screen, okay. So what is the general guideline to boost the revenue? If you want to boost the revenue, एक तो आप डिमांड बेस्ड प्राइसिंग करोगे. जैसे हमने मिंट में ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी डाला हुआ है, तो जैसे आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा प्राइस बढ़ता जाएगा. Time based pricing. Time based pricing means now Mint does not only come with a lead time कि आपका अगर 16 दिन का लीड टाइम है तो वहां पे प्राइस लगाओ. There will be properties with a 1 day lead time. They are not going to have a very effective result when they are using pricing for lead time of 7 days 10 days. उनके लिए ये रहेगा कि आपका अगर एक दिन का लीड टाइम है तो आप लास्ट मिनट रूल लगाओ based on occupancy. If my occupancy is not touching 40% or 50%, if your daily occupancy is, let's say average आपका 50% है, तो आप एक लगा दो कि if my occupancy by 12 o'clock has not touched 50%, drop my price by 10%. If it is touched 50%, then increase my price. And there is a slab, upper slab कि 50 से 60 के बीच में ये प्राइस रखो, 60 से 70 के बीच में ये प्राइस रखो. मिंट क्या करेगा, आपका जो प्राइस है, आपका पहला ऑक्यूपेंसी देखेगा, टाइम ऑफ द डे देखेगा, डे ऑफ वीक देखेगा, मंथ देखेगा, इन सबको कंबाइन करेगा, एक प्राइस अपडेट कर देगा इमीडिएटली. जैसे ही योर प्रॉपर्टी मूव्स टू अ नेक्स्ट ऑक्यूपेंसी स्लैब, इट इज अगेन गोइंग टू चेक एंड अपडेट द प्राइस. नाउ दिस प्रोसेस happens 24/7 365. आपका हर एक ट्रिगर के ऊपर प्राइस चेंज हो सकता है. आपका ऑक्यूपेंसी के ऊपर प्राइस चेंज हो सकता है, आपका डे ऑफ वीक के ऊपर प्राइस चेंज हो सकता है. बिकॉज इनिशियली इट वाज ऑलवेज डिलेमा कि मैं आज 80% मेरा ऑक्यूपेंसी प्राइस बढ़ा दूं क्या, लेकिन थर्सडे मंथ एंड चल रहा है. नाउ राजस्थान के अंदर सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर. गोवा स्टिल हैज अ 15 days ऑफ सीजन. महाराष्ट्र इज अ वेरी मॉडरेट सीजन, राइट?
तो all these factors can be customized and then the price is going online. यहां से जैसे ही कोई ग्रुप आया, बुकिंग आ गया, अगर ऑनलाइन बुकिंग आया सिस्टम अपडेट हो गया, अगर कैंसिलेशन हुआ सिस्टम चेक्स दी ऑक्यूपेंसी अपडेट्स दी प्राइस, तो आपका टाइम बेस्ड प्राइस हो गया। लास्ट मिनट जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। लेंथ ऑफ स्टे हम एएलओएस दिखाते ही आपको ऑनलाइन, आप मिनट के ऊपर देखो मेरा 2 एएलओएस है, तो अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहते हो तो गिव अ 3 एएलओएस, दो तो ऐसे भी बुक कर रहा है। तो ये एक आपका बिजनेस इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ बढ़ता है, दो पे जो ऑलरेडी बुक कर रहा है उस पे डिस्काउंट मत दो, उसको पुश करो कि भाई गो फॉर 3 नाइट्स टू गेट डिस्काउंट, टू ही इज ऑलरेडी स्टेइंग विथ यू। आपका फिर हो गया इवेंट बेस्ड प्राइसिंग। लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, नाउ देयर आर लॉन्ग वीकेंड्स दैट आर गोइंग टू कम इन योर नेबरिंग स्टेट्स व्हिच आर गोइंग टू इम्पैक्ट यू। जैसे गुजरात लॉन्ग वीकेंड्स विल गेट मैक्सिमम क्राउड गोइंग टुवर्ड्स राजस्थान। Similarly, Karnataka long weekends, a lot of people will travel towards Goa because close by, proximity के हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं, कितना लॉन्ग वीकेंड है, क्या ओकेजन है। आपके यहाँ पे दैट माइट बी अ वर्किंग डे, दे हैव अ हॉलिडे, दे आर गोइंग टू ट्रैवल, तो उस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हो। कंपटीशन प्राइसिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट हाउ यू कैन कीप एन आई ऑन कॉमसेट एंड अपडेट योर प्राइसिंग। अगर मार्केट में लो डिमांड है, आपके प्राइस 60% 70% ऑक्यूपेंसी डेली हो रहा है, देन यू जस्ट हैव टू व्यू इट। बट इफ यू फील दैट ओके my competition is daily changing the price, now today I'm sitting at 5,000 and he's sitting at 8,000 because उसके पास तो ऑक्यूपेंसी आ चुका है, right? Then you may want to do that, and if they are also sitting at a low price, you are at 40% sitting on a 5,000 or 6,000 rupees and everybody else is at a lower price, and you might want to look into it and change your pricing accordingly. So these are the general guidelines that are going to help. Apart from that, आपको जो इजी मिंट के फैक्टर्स हमने बताए, ये सारे फैक्टर्स जब आप यूज करोगे, नॉट नेसेसरी हर फैक्टर हर एक के लिए काम आएगा, लेकिन जहां पे भी जो फैक्टर्स आपके लिए काम आ रहा है, मेरे पास एक एक्सपर्ट टीम है who is going to help for first 3 months in making strategies also, that is going to help you understand what is happening in the market, what is your property doing, and how you can improve or leverage easy mint and lot of data that it is there, analysis is there in the system to get better yield for your room. Now, as far as organization, we come with 17 years of experience. Uh, I and Sunil have personally designed the tool, and my team has been working on it for last 3 years. So they are also very much experienced. And we are backed by leaders like Booking.com, Agoda, Expedia, Airbnb, TripConnect, and Google Hotel Ads. We have a 24/7 support, though for other products from Mint, we are available Monday to Friday, but we always make exception to be available for any help that you need with regards to dynamic pricing. And the moment it is plugged, it is because it is in channel manager, the moment you go live, all your prices get automated, not just for today or tomorrow, but if you push inventory for next 500 days, prices are going to get updated for next 500 days, and you will not have to worry, oh, my December price might go a little low, because you would already have updated December price to a factor of 25 or 30% to your base price sitting today, and it will give impact even for December 2025. So I think this is it with regards to dynamic pricing and how to implement. We will take couple of questions. I think I can take 2 questions or 3 questions. If you have any questions, please let us know. Okay, there was one question with regards to category segmentation. Currently, category segmentation is not there, but we will definitely work on category segmentation. In the market like Shady, it's a very competitive market. So in a market like Shady, you would have to go on the pricing based on occupancy and pricing based on timing. If you want, I will have my person reach out to you, and we can have a one-on-one and get into more details. But you will be very, आपके लिए month is not a very important factor. आपके लिए day of week थोड़ा सा matter करेगा, like Thursday, Friday, Saturday. दूसरा आपके लिए मैटर करेगा टाइमिंग्स, आपको लास्ट मिनट डील पे ज्यादा खेलना होगा, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एनी मोर क्वेश्चंस कमिंग इन?
Okay, I think we will wrap this up. Thank you so much for joining, everybody, and my team will reach out to you all who have joined, and we'll discuss easy mint and dynamic pricing at length. Thank you.